Good morning, students. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning, Chinmay. Sir. Good morning, Manthan. Manthan ji, good morning. Manthan ji, good morning. Good morning, sir. Good morning, Hasi. Thanks, sir. Good morning, sir. Good morning, Nupur. Good morning, Yes. sir. Good morning, Bani. Good morning, sir. Prakya, good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Okay. Now, so before we proceed to our chapter which we were doing, okay, just a small recapitulation regarding the submission of the homework. Okay, so yesterday I have extended the date. कल मैंने डेट एक्सटेंड किया था, है ना? Yes, sir. कल की Yes, sir. डेट एक्सटेंड होने के बावजूद only 39 students have submitted, 43 have viewed. Okay, it means remaining 4 out of 43, 4 जनों ने सिर्फ ऐप ओपन किया, सबमिट नहीं किया, एंड many students were there जिन्होंने कुछ भी नहीं किया. अद्वैता द्विवेदी, अद्वैता, are you present right now? Okay. अजीत पवार, अजीत पवार, पहले इनको कॉल करो. It's very embarrassing all this. Yes. Okay. So Vineet Todke, Mahek Alak. Mahek Alak, are you present? Mahek Alak, not present right now. Sheetal Rathod, okay, she done well. Remaining. Srishti Shukla. Yes, sir. Just a minute, Srishti. हेलो, हाँ, अजीत पवार है. हेलो, चौहान सर बोल रहे थे अंबुजे स्कूल से. हेलो, हेलो, यस, प्रेरणा पवार. अजीत पवार से बात करना है. हाँ, अजीत पवार है क्या? हेलो, अजीत पवार. हाँ बेटा, ये बताओ, तुमने कल क्विज अटेम्प्ट करी? हाँ, तो चालू क्लासरूम में अटेम्प्ट किया, कुल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, बंद हो गया तुम्हारा. हाँ ठीक है, अभी अगली वाली समय से अटेम्प्ट करना और क्लास ज्वाइन करो पहले. आइए सर, आइए ना. हेलो, नहीं नहीं सर जी, अगली क्विज टाइम से अटेम्प्ट करना और क्लास ज्वाइन कर लो अभी 30 मिनट में. जी सर. नहीं सर, पता नहीं. जी सर. हाँ सृष्टि. Yes, sir. हाँ बेटा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? Sir, I've attended 14 question, but time was up. That's why I not attended full.
So in 30 minutes, you was able to attempt 17 question, I think. And let me check your account. Yes, you have attempted 17 question. So it means for attempting the 17 question, your 30-minute time was over. No, sir, I was in class also in between. That's why. Acha, you was in class between of which social science. Yes, sir. So I told all of you ना कि आप लोग इसको सोशल साइंस क्लास को बीच में ब्रेक करके सिर्फ अटेम्प्ट करो. अपन ने लाइव क्लास में अटेम्प्टिंग शुरू कर दिया था ना. Yes, sir, but you were telling that project, so I was listening that. ओके, ठीक है, चलिए. अभी ये बताओ, क्विज अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी तो नहीं गई किसी को? No, sir. No, sir. All of you are comfortable for doing it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी जो आप लोगों को कमिंग क्विजेस आएंगे, ठीक है, आफ्टर एवरी 3 और 4 डेज, हर 3 या 4 दिन के बीच में मैं आप लोगों को यही एमसीक्यू क्विज भेजता रहूंगा. मेरी कही गई बात आई समझ? Yes, sir. अभी आपके टोटल स्टूडेंट्स में से है ना, only 39 students around have submitted. 39. So all the students need to attempt the quiz and submit it. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Students are live. Those who are live right now, at least those many must attempt the quiz. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you people will get the next quiz on Tuesday evening. Tuesday को evening time के आसपास आप लोगों को next quiz मिलेगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So now let us continue our sections. Okay, so let us start now. This is what just a minute. Let me come to the section where we have left yesterday. ये वाला हमारा लास्ट में कल कंप्लीट हुआ था. इज इट सो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Leaders and fighters from across the land joined the fight. ये हमारा लास्ट में कंप्लीट हो गया था. ठीक है बेटा? चलिए. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट. द कंपनी फाइट्स बैक. है ना? क्या है हमारा? द कंपनी. The company fights back. अब The company fights back. तो जैसा टॉपिक लिखा The है, company fights. द कंपनी फाइट्स बैक, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करी? लड़ाई में वापसी करी. अब लड़ाई में वापसी का मतलब क्या होता है? लड़ाई हारना या लड़ाई जीतना? लड़ाई जीतना. लड़ाई जीतना. सो द कंपनी फाइट्स बैक मतलब इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने लड़ाई में वापसी करी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस सेक्शन. सो unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with its might. Unnerved by the scale of the upheaval. Upheaval यानी revolt. तो जितना बड़ा ये रिवॉल्ट था, unnerved मतलब बिना घबराए हुए,
सो बिना घबराए हुए, है ना, इस रिवॉल्ट के साइज से बिना घबराए हुए, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विद ऑल इट्स माइट। कंपनी ने इस रिवॉल्ट को अपनी पूरी ताकत से खत्म करने का, कुचलने का निर्णय लिया। ठीक, इट जस्ट अ मिनट, इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से इस विद्रोह को कुचलने का डिसीजन लिया। ठीक है, अब विद्रोह यानी इस रिवॉल्ट को कुचलने के लिए, दबाने के लिए कंपनी ने क्या किया, इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या लेकर के आए, रीइंफोर्समेंट और आर्मी बुलवाई। पास न्यू लॉज सो दैट द रेबल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज। नए कानून बनाए जिसके जरिए जो विद्रोही सिपाही थे उन पर क्या किया जाए, आसानी से मुकदमा चलाया जा सके। ठीक, अब इतनी तैयारी करने के बाद द कंपनी मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन एरियाज पर, उन जगहों पर, उन शहरों पर पूरी ताकत के साथ हमला किया जहां पर विद्रोही सबसे ज्यादा मजबूत थे। तो सबसे पहला अटैक किस पर किया गया, दिल्ली पर। दिल्ली was recaptured from the rebel forces in September 1857। तो मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मई के महीने में रिवॉल्ट हुआ था, है ना। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 या 5 महीने मुश्किल से दिल्ली पर बहादुर शाह जफर ने इंडिपेंडेंटली राज किया। और रिकैप्चर्ड मतलब वापस कब्जे में ले लेना। तो ब्रिटिशर्स ने सितंबर 1857 में वापस क्या कर लिया, दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ओके, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment। जो आखिरी मुगल बादशाह थे जिनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। So he was tried in court and sentenced to life imprisonment। उनको क्या किया गया, कोर्ट में, अदालत में मुकदमा चलाया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यस, गुरुत्व साल्वे, बेटा कैन यू ट्राई टू टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट? Yes, sir. हाँ, try to tell the meaning of the word life imprisonment. What is life imprisonment? What is life imprisonment? Yes, someone else. Sir, till his death he will be in prison. Sir, उम्र कैद। उम्र कैद, है ना। Sir, So, whole life in हाँ, Whole life in jail. Whole life in whole life in jail. He and his wife Begum Zeenat Mahal. What was the name of the wife of Bahadur Shah Zafar? Bahadur Shah Zafar की wife का Begum नाम? Zeenat Mahal. Okay, Begum Zeenat Mahal. good. The couple were sent to prison in Rangoon, okay, in October 1858. उन्हें रंगून में 1858 को क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। Okay, he died in Rangoon jail in November 1860. The recapture of Delhi did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली पर कब्जा करने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। People continued to resist and battle the British। जो लोग थे, है ना, जो लीडर्स थे, कॉमन पीपल थे,
पेजेंट थे, फार्मर्स थे, ये सब क्या, दे कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ आगे भी लड़ाई लड़ते रहे। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. ब्रिटिशर्स को अगले 2 सालों तक हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर छोटी लड़ाई, कहीं पर बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ी। ओके, टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। ठीक है, देन तो दिल्ली जीतने के बाद में ना, तो दिल्ली पर वापस कब कब्जा हुआ, सितंबर में। देन लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। ठीक, मार्च 1858 में लखनऊ को वापस ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। देन रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। ठीक, अ सिमिलर फेट, इसी तरीके से रानी अवंतीबाई को भी हरा दिया गया। ओके, सो a similar fate happened to Rani Avantibai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Okay, the accompanied of Lakshmi Bai Tatya Tope escaped to the forest of the central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. Finally, he was also captured, then tried, means the case run against him, and he was also killed in April 1859. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Just as victories मतलब जीत, so just as the victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. इसका क्या मतलब है कि जब शुरुआत में, स्टार्टिंग में 1857 रिवॉल्ट की शुरुआत होने पर, तो जब 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ, तो जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस को जीत मिल रही थी, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस को क्या मिल रही थी, जीत। ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों ने बड़ी संख्या में किसमें पार्टिसिपेट किया, इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया। ठीक, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस एनकरेज डेजर्शन। परंतु जब भारतीय लोग रेबेलियन हारना शुरू हुए, तो लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के बजाय लड़ाई छोड़कर भाग गए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The British also tried their best. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि हिंदुस्तान के लोगों की लॉयल्टी, यानी हिंदुस्तान के लोगों को दोबारा क्या कर सकें, अपनी तरफ मिला सके। यहां तक बात आई समझ में? चलिए, they announced rewards for loyal landholders, okay, would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. They announced rewards, है ना? तो ब्रिटिशर्स ने भी भारतीय लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए सारी कोशिशें करी। तो पहली कोशिश उनकी क्या थी, दे अनाउंस्ड रिवार्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स, यानी वे लोग जिन्होंने, है ना, भारत के वे लोग जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था, 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनके लिए इनाम की घोषणा की गई कि जो लोग हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, उन्हें हम क्या करेंगे, हर प्रकार की सुविधा देंगे। तो उन लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट किया गया कि जो लैंड होल्डर्स, जो जमींदार, जागीरदार, छोटे राजा महाराजा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ में थे, उन्हें
उसी तरीके से राज करने दिया जाएगा जैसा ब्रिटिशर्स के आने के पहले था। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, जिन लोगों ने रेबेलियन भी किया था, विद्रोह में भाग लिया, ठीक है, और उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, तो वे लोग जिन्होंने रेबल में पार्टिसिपेट किया था परंतु सरेंडर कर दिया और उन्होंने किसी भी व्हाइट पीपल को नहीं मारा, किसी भी व्हाइट पीपल को नहीं मारा, उन लोगों को भी क्या बोला गया? दे वुड रिमेन सेफ, वो भी क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सॉरी, एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और ये कहा गया कि उनके जो अधिकार हैं, जमीन जायदाद जो हैं, वो उनसे छीनी नहीं जाएगी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेवरदलेस मतलब इतने लोगों को छोड़ देने के बाद में भी hundreds of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजास were tried and hanged, ठीक है, इतने लोगों को माफ करने के बाद में भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो रेबेल सिपॉयज थे, विद्रोही थे, है ना, नवाब थे, राजा थे, उनके ऊपर केस चलाया गया। ट्राइड का मतलब क्या होता है बेटा? मुकदमा चलाना। ट्राइड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइड? मुकदमा चलाना। मुकदमा मालूम है क्या होता है? Yes, sir. हाँ, केस चलता है ना कोर्ट में, तो इसी तरीके Yes, से sir. Case. हाँ, इन सिपाहियों के ऊपर, रेबल्स के ऊपर, नवाब हैं, राजाज हैं, इन सब के अगेंस्ट में मुकदमा, केस रन किया गया, ठीक है, उनको दोषी ठहराया गया एंड हैंग्ड मतलब फांसी पर चढ़ा दिया। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Now, sir. Yes, sir. Yes. the next section है, the next section is aftermath. aftermath का मतलब 1857 का रिवॉल्ट खत्म होने के बाद में। तो आफ्टरमाथ मतलब इसके बाद क्या हुआ। यहाँ तक बात आई समझ? आफ्टरमाथ इज व्हाट? Yes. Yes, sir. इसके बाद में इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक ना। सो द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 का एंड आते आते, 1859 खत्म होते होते, द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। तो 1859 खत्म होते होते ब्रिटिशर्स ने क्या किया? रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री, यानी देश के लगभग पूरे हिस्से पर अपना कंट्रोल वापस एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। परंतु अब वो हिंदुस्तान पर उन्हीं पॉलिसीज, उसी तरीके से राज नहीं कर पा रहे थे जैसा 1857 के पहले वो लोग करते थे। यानी 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स हैड टू चेंज देयर पॉलिसीज। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा? अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, given below are some of the important changes that were introduced by the British, है ना। नीचे हमें कुछ important changes के बारे में बताया गया है which were introduced by the
अब कौन कौन से चेंजेस थे, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में नंबर 1 पर लिखा हुआ है ना, इट इज ए वेरी लॉन्ग। यस सर। तो ये बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो जो पहला वाला है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? द फर्स्ट चेंज इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। किससे रिलेटेड है? Administration. How did, yes beta, how did they do? The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. ठीक है। सो 1858 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया और उस नए कानून के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटा करके और अब इंडिया पर किसका रूल एस्टेब्लिश किया गया? ब्रिटिश क्राउन का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कानून के द्वारा हिंदुस्तान में इंडिया पर रूल करने की जो पावर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई और अब इंडिया पर रूल करने का अधिकार किसको मिल गया? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन के राजा या रानी। यहां तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ब्रिटेन के जो राजा हैं, ब्रिटेन के राजा या रानी, तो वो हिंदुस्तान आकर के तो नहीं रहेंगे, इंडिया आ गए और यहाँ से राज करेंगे, तो उनको रहना तो इंग्लैंड में ही है। तो फिर बेसिकली राजा तो इंग्लैंड के राजा या रानी हिंदुस्तान के रूलर बन गए और उनके बिहाफ पर, उनके बदले में इंडिया में रूल करने के लिए एक सेपरेट पोस्ट बनाई गई, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट? A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India. ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में जो कोई एक मिनिस्टर थे उनको क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक सेपरेट मंत्री ही बना दिया। एंड he was made responsible for all matters related to the governance of India, ठीक है। और अब उस सेक्रेटरी का, उस मिनिस्टर का सिर्फ एक काम था कि इंडिया में जो रूल है वो किस प्रकार चल रहा है उसको मैनेज करना। He was given a council to advise him called the India Council, ठीक है। अब वो जो मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी जो थे, ठीक है, वो भी बेचारा एक ही व्यक्ति है, इतने बड़े हिंदुस्तान को कैसे चलाएगा? तो उसको भी क्या किया गया है? काउंसिल, यानी उनको अपना मंत्रिमंडल बनाने की परमिशन दे दी गई, ठीक है। तो वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, अब वो क्या करेंगे? ही कैन मेक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दे विल एडवाइज हिम टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करेंगे? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में किसकी मदद करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की मदद करेंगे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो मिनिस्टर थे, है ना, जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी कहाँ रहेंगे बेटा? सेक्रेटरी रहेंगे इंग्लैंड में। कहाँ रहेंगे? England. उनके पास जो काउंसिल है, इंग्लैंड। उनके पास जो काउंसिल दी गई, मिनिस्टर जो दिए गए, वो भी कहाँ रहेंगे? इंग्लैंड में। कहाँ रहेंगे? England. इंग्लैंड। तो फिर इंडिया का क्या होगा? इंडिया का क्या होगा? तो इंडिया में स्पेशल एक ऑफिसर की पोस्टिंग की गई और ये जो ऑफिसर हैं ये कहाँ रहेंगे? इंडिया में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? India. ठीक है। India. England.
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो इंग्लैंड से ही इंडिया के रिलेटेड मैटर्स देखते थे, ठीक है। उनके पास जो काउंसिल थी उसके मेंबर्स भी मैक्सिममली इंग्लैंड में रह करके ही इंडियन मैटर्स को डील करते थे, ठीक है। तो इंडिया में कौन परमानेंटली रहेगा? तो इंडिया में परमानेंटली रहने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया और उस ऑफिसर को पहले क्या टाइटल दिया जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the title of वायसरॉय। यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको क्या बोला जाता था? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 1857 के बाद उन्हीं को क्या टाइटल दे दिया गया? वायसरॉय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायसरॉय? वायसरॉय इज व्हाट? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी राजा का प्रतिनिधि। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. तो इतने जो चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए, इन सारे चेंजेस के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल करने की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यानी पहले इंडिया पर रूल कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली क्या थी? एक रूलिंग, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारी थे, बिजनेस करने आए थे, ठीक है। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया पर रूल, इंडिया पर शासन करने का जो अधिकार है वो एक कंपनी के हाथ से निकल करके किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So all the ruling chief of the country, है ना। अब अगला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय रिमेनिंग कंडीशंस के लिए। So all the ruling chief of the country were assured that their territory would never be annexed in future. रूलिंग चीफ मतलब उस समय तक जितने भी राजा महाराजा अपने अपने इलाकों पर राज करते थे, यानी उतना एरिया जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डायरेक्ट कब्जे में नहीं किया था उस समय तक, है ना। तो उन लोगों को एश्योर्ड, यानी उन राजा महाराजाओं से ये वादा किया गया कि दैट टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। उनके राज्यों को, उनके इलाकों को फ्यूचर में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जे में नहीं करेगी, आप अपने राज्य पर राज करते रहे। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs. उन्हें इस बात की परमिशन भी दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं? अपने किंगडम्स, अपने राज्य अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते हैं, ठीक है। यदि राजा की संतान नहीं है तो क्या कर सकते हैं? किसी को भी Yes, sir. ठीक है। और जो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नित्या वडास्कर, डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स, नित्या वडास्कर। Yes, sir. कौन सी पॉलिसी पढ़ी थी बेटा हमने? डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स। Yes, sir. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स की पॉलिसी में क्या था कि यदि राजा की डेथ हो जाती है, और बेटा ऑडियो बंद कर दिया कर, तो यदि राजा की डेथ हो गई और उसका कोई लड़का नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। वो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स। यानी 1857 से पहले
राजा अपने एडॉप्टेड सन को अपना राज्य नहीं दे सकता, ठीक। परंतु 1857 के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और किसका रूल वापस आया, किसका रूल आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उन्होंने ये वादा किया कि आप अपने उत्तराधिकारी को अपना किंगडम पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, आपका एडॉप्टेड सन आपकी डेथ के बाद राजा बन जाएगा। दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट, और एक्नॉलेज मतलब इन राजा महाराजाओं को ये कहा गया कि आप अपने अपने राज्यों पर राज करते रहें, परंतु आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ब्रिटेन की जो महारानी है उसे पैरामाउंट मतलब सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा। अब पैरामाउंट या सुप्रीम पावर का मतलब क्या हो गया, ये जो ब्रिटिश क्वीन है क्या है, ब्रिटिश क्वीन, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश क्वीन वाज द रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया का रूलर कौन रहेगी, ब्रिटिश क्वीन और जितने भी इंडियन किंग्स हैं या क्वीन हैं वो किसके अंडर में रूल करेंगे, ब्रिटिश क्वीन के अंडर में। यानी कुल मिलाकर हम ऐसा समझ लें कि ये इतने छोटे छोटे राजाओं के ऊपर भी एक राजा या रानी और है, और वो कौन है, द ब्रिटिश क्वीन, ठीक है। क्योंकि 1858 के समय ब्रिटेन के ऊपर राजा नहीं, किसका राज्य था, रानी का राज्य था। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। सारे राजा महाराजाओं को ये वादा कर दिया गया कि आपका राज्य अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जे में नहीं करेगी, आप अपने किसी भी रिलेटिव को गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, राजा की डेथ के बाद अडॉप्टेड सन राजा बनेगा, ठीक। परंतु उन्हें अपनी एक शर्त माननी थी कि ब्रिटिश क्वीन इन सभी राजाओं के ऊपर क्या होगी, एक सुप्रीम पावर। So the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinates of the British crown. Okay, then it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और क्या डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स की संख्या आर्मी में कम कर दी जाएगी और उसकी जगह पर किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, यूरोपियन सोल्जर्स। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ recruiting soldier from अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि जो इंडियन सोल्जर्स भर्ती करने, पहले तो इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करो, ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ाओ, यूरोपियंस की संख्या बढ़ाओ। अब इंडियन सोल्जर्स को भी जो भर्ती करना है तो उसमें भी क्या डिसाइड किया कि अवध यानी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से क्या नहीं भर्ती करेंगे, सोल्जर्स भर्ती नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम एमंग द गोरखा, सिख एंड पठान। यानी भारतीय सोल्जर्स में भी अवध यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया से सोल्जर्स भर्ती नहीं करेंगे, बल्कि इंडियन सोल्जर्स की भर्ती किन इलाकों से होगी, गोरखा, गोरखा मतलब तो नेपाल या दार्जिलिंग के आसपास, सिख मीन्स पंजाब और पठान दैट इज मुस्लिम फ्रॉम द पाकिस्तान। तो ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स कौन भर्ती होंगे, इन एरिया से। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility, ठीक है।
अगला कदम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मुस्लिम रूलर्स थे, है ना, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर क्या किया गया, कब्जा कर लिया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने मुस्लिम पॉपुलेशन को सस्पिशन, ओके जस्ट सॉरी स्टूडेंट्स, सो द टाइम इज गोइंग टू ओवर, है ना, इट इज 9:32, so it may be the time for your next class, so we are winding up the session here only. Okay, Thank you, sir. 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 Thank you, sir.